most nerve-wrecking 17 days for the trapped labourers inside the Silkyara tunnel and also the country that waited for the light at the end of the dark tunnel. बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है और सबको बिल्कुल जो है कहिए कि बस जल्दी से जल्दी और आप ही लोगों को नहीं है आप लोगों के लिए पूरा देश लगा हुआ है. Hopes raised and downed by the many twists and turns as the might of the mountain tested human grit. जरूरत हो तो बताइएगा. India mounted its most daring and longest rescue operation. It was Black Diwali on November 12 when a portion of this under-construction tunnel fell down due to landslide here in Uttarakhand's Uttarkashi district. And at the strike of dawn, life came crumbling down for these construction workers. A construction worker was heading to his room and finishing the night shift when he heard a colleague shouting. A part of the tunnel where he had been working had collapsed, trapping his colleagues inside. 5:30 बजे घटना हुई थी. हम लोग यहाँ पर नाइट ड्यूटी कर रहे थे तो पीछे से 2-3 वर्कर भाग के आए कि सर वो आगे जो है ब्लॉकेज हो गया, लूज गिर गया है. उसके बाद हम जो है तुरंत जो है सेफ्टी ऑफिस पे गए, सेफ्टी वालों को बताया, वहां से वो लोग भी आए. फिर हमारे जो है प्रोजेक्ट मैनेजर हमने उनको सूचना दी, वो लोग तत्काल जो है यहाँ पर पहुंचे हैं. क्योंकि दीपावली का वो पर्व था तो हर अधिकारी इधर उधर गए थे तो तुरंत जो है जिसने जैसे जहाँ सूचना मिली तुरंत वो जो है मौके पे भाग के आया. Initially, the administration could not realize the severity of the situation and it asked the state disaster response team to lead the rescue operation. The SDRF engaged excavators on the first 2 days, that is November 12 and 13, to remove the debris, but that was partially successful. The debris kept falling and hampered the rescue operation, which was trying to create a safe passage to reach the men. अप्रॉक्सीमेटली लगभग 60 मीटर्स का पैच है जो कि क्लोज था. हमने उस पे 15 मीटर्स के राउंड काम कर लिया है. क्योंकि मलबा ऊपर से लगातार गिर रहा है तो हम आगे जाने में थोड़ा रुक रहे हैं क्योंकि इसमें रिस्क है. जैसे ऐसे हमें आगे पैच फ्री मिलेगा हम चलते जाएंगे. लगभग 15 मीटर्स के आसपास हम आ चुके हैं. Rescuers now needed a new plan, and then an auger machine was called in from Uttarakhand to drill through the debris and insert a 900mm wide mild steel pipe through which the workers would crawl out. But even this machine was not able to drill through. रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी गतिमान है और एक पाइप्स के माध्यम से एक एस्केप टनल बनाने का प्रयास किया जा रहा है. तो जो रिक्वायर्ड संसाधन थे सभी साइट पे आ चुके हैं और उसके बाद एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है ऑगर मशीन के लिए और उन पाइप्स को अंदर पुश किया जाएगा. तो वो प्रक्रिया भी गतिमान है और जैसे ही ये काम होगा मुझे लगता है सभी लोग सकुशल वापस रेस्क्यू हो जाएंगे. But back home, the family members of the trapped workers had no clue as to what was happening there. कौन अंदर है जो अंदर फंसे हुए हैं? हमारा बेटा है मंजीत. बातचीत में यही कहा कि पिताजी खटका मत करना, मैं यहाँ साथ हूँ और ईश्वर से प्रार्थना मैं यही कर रहा हूँ प्रशासन से कि जल्दी आप आ जाओगे. Now every under construction tunnel is fitted with a water pipe. The purpose of the water pipe is that the workers who are working inside the tunnel should not frequently come out to fetch water. Eventually, the same water pipeline became the lifeline of those trapped inside. The authorities managed to provide dry food to the construction workers so that they can survive inside till the debris is cleared. Through the water supply line, communication was established between the trapped construction workers and the rescue team. वहाँ पर ह्यूमन पाइप पहले लगे हुए थे सर, लेकिन वहाँ पर काम चलने के कारण शायद वो पाइप आजकल अलग रखे गए थे. वहाँ पर काम चल रहा था. अगर ये पाइप रहते थे सर शायद आने में सुविधा हो जाती. गिर गए तो आने में सुविधा रहती. This is a prestigious project, and the purpose of the project is to connect all the 4 major dhams for pilgrims. On November 15th, the rescuers brought in a large American-made drilling machine for the job.
Airlifted from Delhi, the parts of the machine were brought to the tunnel site and later assembled. The auger machine started the drilling work, making considerable progress, but with frequent obstructions delaying the rescue operation. अभी कर रहे हैं, ओगर लगा रहे हैं हम लोग। वो सर टाइम लगेगा, अभी मेरे को नाइट में फिर आना है, मेरा काम है। वो सरिया फंस गया था, रॉड वो काट दिया गया है, अब काम चालू हो जाएंगे। तो आपके ड्रिलिंग का काम चल रहा है? हाँ चलेगा, पुश को कर देंगे, अब पाइप ओवर अंदर डाल दिया है, काम चालू हो जाएगा। Amid continuous setbacks, rescuers and authorities started exploring other options, including vertical drilling from the top of the mountain. This machine needs to go on the top of the mountain for the vertical drilling, because the drilling which was happening, the auger machine which was functioning horizontally, the distance between the mouth of the cave and where the workers were stuck was about 60 meters. The drilling was completed for about 47.8 meters. So in that, when the escape tunnel, through the escape tunnel, when the auger machine had been sent inside, there it broke down and metal pieces got stuck. Now manually those are being extracted. As the rescue operation stretched till November 18th, the relatives of the trapped labourers and high-ranking officials started gathering at the tunnel collapse site. बहुत दिल रोट है हमारा, बच्चे हमारा कब देखा, कहीं कब बोली लगा, दिन भर रोई थी, क्या करे। एक टाइम भोजन नहीं मिला थे तो दोसर मिलके जीव करा थे घर ही, वो अंदर का खाते का नहीं खाते हमरे बेटा। खाना वैसे ही पर रह जाता है, वही खवाई नहीं समझे बुझाई तो थोड़े थोड़े खा ली थे, नहीं वो रह जाता है खाया। दीपावली के पहले शुक्रवार के दिन हम लोग को पता लगा कोई भी गांव का आदमी पेट भर भोजन नहीं कर रहा है, केवल पेड़ खिला रहा है। हमारा लड़का बाहर निकल जाए यही बहुत है, बहुत जैसे ही हमारा लड़का यहाँ से गए थे वही से ही मैंने वहाँ से मैंने बढ़िया अच्छा से आए। It was a boost to the sagging morale of the rescuers when they managed to establish communication with the 41 construction workers trapped inside the tunnel for the last 10 days. An endoscopic pipe mounted with a video camera was sent inside, and then each one of the 41 construction workers started talking to the authorities and the rescue team. And that is when on November 12th, fresh food was also supplied to them. The government decided to engage 5 agencies: ONGC, Satluj Jal Vidyut Nigam, RVNL, NHIDCL and Tehri Hydro Development Corporation Limited, and the coordinated efforts brought the first major breakthrough. एक और वर्टिकल ड्रिलिंग प्लान 4 जो है, प्लान 4 एक और वर्टिकल ड्रिलिंग है जो ONGC कर रही है अपनी मशीन के जरिए। ये तकरीबन 2 फीट की 24 इंचेस की ड्रिलिंग होगी, वर्टिकल ड्रिलिंग बरकोट की तरफ। ये जो पहली वाली मैंने बताई थी ये इस तरफ थी, जो हमारे टनल के इस एंड के पास थी, ये बरकोट के एंड की तरफ हो रही होगी। रोड की तैयारी इसके लिए की जा रही है। 5 किलोमीटर की रोड चाहिए इसके लिए, ऊपर तक ले जाने के लिए सही अलाइनमेंट के साथ, क्योंकि इक्विपमेंट भारी है। तो एक और ऑल्टरनेटिव है ड्रिफ्ट का तरीका, जिसके लिए फैब्रिकेशन हो रहा है, सामान बन रहा है। वहां पर आर्मी के इंजीनियर्स इसको बना रहे हैं पूरे। This brought a huge relief to the family members of the trapped labourers. I am joined here by some of the relatives of those labourers. इधर आ जाएं आप। क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह हैरी। जी? विक्रम सिंह हैरी। कहाँ से हैं आप? छिनीकोट टनकपुर चंपावत डिस्ट्रिक्ट। चंपावत डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। जी जी। तो कौन है आपके जो अंदर है? छोटा भाई है मेरा। क्या नाम है उनका? पुष्कर सिंह हैरी। पुष्कर सिंह हैरी। पुष्कर सिंह। अच्छा, तो कब से यहाँ काम कर रहे थे? तो काम तो इधर तो 2-2.5 महीने हो रहे हैं उसको आए हुए, पहले दूसरी साइड पे था। टनल के अंदर ही जाके बात हुई थी 2-3 बार हमारी। कई लोग कह रहे हैं कि फोन भी है। फोन नहीं, फोन तो उसी दिन डेट पड़ गया था जी उसके शाम से। चौथे दिन पता लगा हमें। हाँ, वो तो उनके दोस्त थे, उन्होंने कॉल करी तब पता लगा। कंपनी की तरफ से कोई कॉल नहीं आई पहले, उनके दोस्त ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। हमारा पूरा विश्वास भगवान पर रहा,
हमेशा से हो रहे से कि भगवान हमारा लड़का सही सलामत ले हैं। कब से हमको बेटा निकल जाए तो ट्रेनर से निकल जाएगा तो और अच्छी बात है। बहुत हम खुशी हमको है कि हमारे लड़कन के बच्चे को निकालने के लिए बहुत सरकार जुटी है, एक पल नहीं बैठी। By November 24th, the auger machine managed to drill more than 45 meters through the rubber. And then, yet another obstacle hit the auger machine. But this time, it was severe. बहुत नज़दीक पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मशीन फंस गई, आगे कोई फिर से कोई गडर या कोई स्टील रॉड उसमें लग जाने के कारण से, तो अभी चूँकि उसको काट के 1 मीटर काट के निकाल रहे थे, लगभग 20 मीटर अभी बाहर निकल चुकी है और 20-25 मीटर करीब अभी और निकलनी है, 25 मीटर से ज़्यादा है। तो जो भी समय लगेगा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मॉर्निंग तक ये जो है मशीन पूरी निकल जाएगी और निकलने के बाद उसके बाद मैनुअली उस पर आगे बढ़ेंगे। As the big machines failed, it was left to human hands to move the mountain and save the men, using the age-old and banned practice of rat hole mining. These 12 men worked 24 hours non-stop on November 27th and 28th to clear the debris by hand and small tools to make way for the rescue cars. तैयारियां पूरी है, सिर्फ इंतजार इसका है कि वो 2 मीटर का पाइप कितना पुश हो गया है। उसको पुश होने के बाद उसमें से एनडीआरएफ के लोग उन लोगों को लेकर जब बाहर निकालेंगे उनको, तो तब कंफर्म किया जाएगा कि वो उस मलबे से बाहर यहाँ पर जहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पहुँच चुके हैं। Where human machines failed, human grit prevailed. Uttarkashi's air was filled with hope and celebration. By November 28th afternoon, rescuers were just 2 meters from the labourers on the other side of the debris. Uttarkashi's air was filled with hope and celebration as preparations were made to bring out the labourers. लगभग अभी भी थोड़ा बहुत इंतजार करना होगा, लेकिन ये ऑपरेशन लगभग आज पूरा हो जाएगा, ये पूरी इनको संभावना है और इस पर विश्वास है, क्योंकि लगभग वो जो पाइप है वो उस मलबे के आर पार हो चुका है। Ambulances lined up at the tunnel. A makeshift hospital was set up inside. The miners came out after laying the rescue path and NDRF men moved in. ये वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने वादा किया था कि 24 घंटे से पहले उनको निकाल के लाएंगे, और ये रेड माइनर्स और ये जो हाथों से खुदाई करके अंदर पहुंचे, सबसे पहले किस तरह का रिएक्शन था जैसे आप अंदर पहुंचे? जैसे हम अंदर पहुंचे वो लोग देखते के साथ ही हमें खुश हो गए और उनसे ज्यादा हम खुश हो गए। इन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत करी है कि सरिया काट के, पाइप काट के, जिस तरीके से ये लोग आगे गए हैं उन्हें निकालने के लिए। लेकिन एक चीज बहुत कमाल की, हमारे अंदर भी तो जज्बा ऐसा था कि उन्हें निकाल के लेकर आना ही है। ये हमारे लिए एक तरीके अपॉर्चुनिटी क्या, ये लाइफ में एक चांस था हमारे लिए। ये वो लोग हैं जिनके भरोसे पूरा देश था कि कम से कम वो जो आखिरी 20% रह गया उन पर ये आएंगे और खुदाई करके लाएंगे, लेकिन उन्होंने वो काम कर दिया जिसपे सभी को लग रहा था क्या वो 24 घंटे में होगा, लेकिन 24 घंटे से पहले काम कर दिया है। और ये अंदर पहुंचे, उनका रिएक्शन अलग था क्योंकि उन्होंने 17 दिन बाद कोई इंसान अंदर देखा है उन 41 के अलावा। At about 8 p.m, the first labourer was brought out, and then the other. By 9 p.m, all 41 trapped labourers were out healthy and happy. After 17 days of a nerve-wracking operation.